Hello everyone, and welcome to the session. This session is meant for introducing public administration as an optional. Basically, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା civil service preparation ରେ deciding an appropriate optional becomes a top task for every candidate. Almost all candidates face a tough question regarding the choice of optional. That's a basic question to be answered also, because obviously optional plays a vital role in the entire selection process, and it is this particular area where the candidate has to excel, has to secure more number, more marks, जोटा कि दरकार समस्त कारण ऑप्शनल चॉइस रे जदि आमर टिके प्रॉब्लम रहिला ताले आमे निश्चित भाव में कोट ना कोटी सिलेक्शन प्रोसेस रे पछरे पड़ जाई पारू. I have brought this session for a public administration. I will tell you why public administration stands at a taller position than other optionals. There are many popular optionals, 3 to 4 optionals. They are usually chosen by candidates like public administration, PSIR, political science, international relations, sociology. Then you can say a type of agriculture, anthropology, psychology. These are in the same order. So one of the most popular optional is public administration, but public administration has a superior position to other optionals. There are many reasons why public administration is comparatively better, comparatively less risky, less approachable, less difficult, and more approachable, more accessible. I'll tell you. Okay, let's start the session. We'll be discussing in detail regarding the choice of optional, why public administration should be chosen as an optional, and what is public administration in brief. I'll show you 2 quotes of different thinkers regarding public administration, and I will tell you why public administration is the most preferred optional. Okay, if you go through the selection list, you will find that success rate in public administration is comparatively better or higher than other optionals. Obviously, on optional be ठीक है आराम करिबा. But as usual, I have a quote. Every class I will have a quote, and I have a quote that opens up your thought process. Because civil servant is a philosopher king, the Plato's philosopher king. They have to think before the people think. They have to take action before the action is required, and they have to be proactive in that sense. So thinking process should be very much opened and extensive रहा दरकार. Civil servant गोटे thinker बोली कहुए, philosopher king, and a thinker should be a philosopher. The thinker should be the king, or the king should be the thinker. जहाँ करियो ठीक है. So therefore thinking process टा हमर दरकार. So this quote is attributed to Jeremy Bentham. He says that the only happy people are those whose minds are fixed on some objectives other than their own happiness. If we want to be happy, we need to have a fixed goal. Without goal, but without aim, a person's life becomes confused, and you can say a type of गोटे माने कौन टाइप ऑफ गोटे कॉम्प्लेक्स इश्यू है जे गोटे डिफिकल्ट बा गोटे टाइप रो इनकनक्लूसिव लाइफ है जे. तेणु एमलेस लाइफ इज ए रडरलेस शिप कह जाए. Every person should have an objective, whether the objective should be for the society, for the nation, for the country, for the people.
not for yourself. If you remain concentrated on your own happiness, then you cannot be happy, says. That means you should have an external objective. So for a civil servant, the objective is to serve the people in the well-desired manner, resulting in the contentment of the people. So as a civil servant, you have a goal for public service, and that if you realize those goals, then you can be a happy person. Okay, that is a good quote. आरंभ करिबा हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो देखो first of all I will clear you doubts some doubts regarding optional choosing. While choosing an optional for civil service examination, we face a very single most difficult question. We face a single most difficult question गोटे थाए हम पाखे सब कौन क्वेश्चन ना which optional is better. Which optional is better? First I will answer this question. Which optional is better? It is a tough question while choosing an optional for civil service examination. We face single most difficult question ki which optional is better for me. But optional means you need to have a mastery or type of command over a particular subject. But remember, you are not going to be an expert in that subject. Your subject may not have any relevance in your actual job scenario. But it is a different thing in case of public administration, because if you learn public administration, it will also help you in your on-the-job practices, on-the-job decisions. It will of immense help. कारण जोटा भी आमे करिबा सेटा ही public administration. जोटा में you after we become OAS or officer or any civil servant, whatever we do constitutes public administration. किंतु in comparison other optional जहाँ भी हो आमे सेठी expert हवा को जाऊने कारण आमे सेठरे professor हवानी कि teacher हवानी हमरो गोटे general command रहेगा तो general command over the topic. इटा प्रथम जिनिस कारण so called optional कथा कहले आमे भाबु कि expertise गोटे complete expertise, but we need a general competence over the topic. General competence दरकार, not expertise, not mastery or expertise. এটা ফার্স্ট দেখিବାକୁ ପଡ଼ିବ कि आमे जो सब्जेक्ट टा नबा सेतिरे हमरो मास्टरी दरकार नहीं. आमे सेति लेक्चरर होबाक जाउने कि प्रोफेसर होबाक जाउने कि पीएचडी करिया को जाउने. आमे सिंपल गोटे कॉम्पिटेंस रहिया दरकार से सब्जेक्ट एरिया पर से को ऑप्शनल भी हो सेटा गोटे मेजर जिंस सेटा को हमको मुंडर काढी नवा पड़िबो कि आमे एते एक्सपर्ट हबा नाही. द्वितीय जिंस हला दिस एग्जाम इज ए भास्ट एग्जाम, vast area through coverage रहुची. You must have idea कि we have to pass through 3 different stages, and the preliminary stage, the means the written stage, writing stage, and viva stage that constitute mains. So you are going to grapple with many subjects. Almost all subjects, because everything under the sun is a part of civil service preparation. तो सेतिपई सब मल्टीपल सब्जेक्ट्स तुमको देखियो पड़िबो हमको. देयर आर लार्ज एरियाज स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू करंट अफेयर्स. एवरीथिंग इज देयर. जियोग्राफी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, what not exam. Everything is covered. But do you think that a person can have expertise in almost all subjects? Not at all. Then what is required? The key to success
lies in general comprehension of the keywords given in the syllabus. General comprehension. As an educated person, your average idea will work, not in-depth idea, because you cannot have in-depth idea about almost all keywords mentioned in the entire process, syllabus. Whether it was prelim, mains, all these syllabus, there are a lot of keywords, hundreds of keywords are there, and a number of subjects are there. Every subject has a place, even science has a place in it, applied science. You need to have working knowledge in science, you have to have working knowledge in geography, in history, in polity, in international, national affairs, in human psychology, in everything like that. Disaster management. Okay, you are going to be a generalist. So therefore you must have general comprehension of these things. You are not going to be an expert, you are not going to be a specialist in any field, but you must have ideas about every field. Jack of all trades, master of none will work here. So ये गोटे मेजर जिनस जाना पड़ो कि जनरल कॉम्पिटेंस न थाए तेणु से मेजर जिनस आउ गोटे टॉप प्रॉब्लम आम फेस करू कि whether I have a background. आम यहीटा भी देखू कि मोर बैकग्राउंड अच्छी ना नहीं. बहुत पिला पोस्टपोन कर सर मोर से बैकग्राउंड नहीं, मोर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की PSIR है कि सोशल सर मोर से बैकग्राउंड नहीं मु पारिबी कि नहीं. बट फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन ए एग्जाम रे बैकग्राउंड थिला वाला जति कि न करंती नॉन बैकग्राउंड पिला से करंती. कारण एमती तो जो बैकग्राउंड रो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन बा ग्रेजुएशन कंप्लीट करी था, most of the students skip that subject and choose another subject which is popular, very much popular, like जो कहली चिंजाटा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और होम साइंस also is there. So ये 4-5 एरिया ऊपर करती. Why are these optionals preferred and have a long success history? Success history पाई तो हमें कहूँ ना. Suppose you have done your post graduation in chemistry, you are not choosing chemistry as an optional, although chemistry is there. Suppose you have done your post graduation in mathematics, physics, you are choosing mathematics or physics as an optional, but you are not choosing that. Why? Because there are certain factors कि कहीं की background matter करिवनी. कारण एथरे background किसी matter करिवनी एठी पाई कि एथिरे जनरल कॉम्प्रिहेंशन दरकार. बैकग्राउंड थिला बोला जे पारिबो न पारिबो सेटा मतलब न थाए. कारण केमिस्ट्री रे पोस्ट ग्रेजुएशन कला पिला से केमिस्ट्री ऑप्शनल लिए नाही, से को ऑप्शनल लिए गोटे चोजन ऑप्शनल लिए कोटा जोटा देटा ओवरलैपिंग क्वालिटी थाए तार मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो ऑप्शनल ले था, जो ऑप्शनल रे मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था एवं जोटा इजीली comprehensible, less theoretical, सेगुरा आम चूज करूँ. एमती गोटे सब्जेक्ट चूज करूँ आम जोटा ओवरलैपिंग थाए. Why people are choosing sociology? Because it has some overlap with essay paper, with Indian society in the first paper. There are multiple way it helps. Why people choose political science? Because it has some relevance in internal security, disaster management. In essay paper also it will help you, and in GS2 have some portions related to. Okay, so overlapping, and public administration in this regard is far ahead. Overlapping re to public administration pura आगे रहे. I'll show you.
कि बहुत सारा पेपर रे ओवरलैपिंग अछि तो ओवरलैपिंग नेचर को आम कंडीशन करूँ कारण आम गोटे पाठ पढ़िले गोटे थर पढ़िले जमती से मल्टीपल पेपर को कैटर कर सो दैट आमर रिविजन आमको बहुत समय मिलिबो एवं माने आमे आउरी अधिक तापर एक्सीलेंस अचीव करि परिबा कारण मल्टीपल गोटे सब्जेक्ट को आमे जेतेबेले थरोली पढ़ू विभिन्न डिफरेंट टाइम गोटे विभिन्न थर पढ़ू विभिन्न थर एनालाइज करूँ एवं सेटा जेतेबेले तीन चारटा पेपर को कैटर कर दिए तो आमर समय बंचे एवं आमे एक्सपर्टाइज नहीं आसू मान भल लेखा से आसे एवं आमे ओब्वियसली नहीं कि तेणु सेटा गोटे ओवरलैपिंग नेचर आउटेला जोटा इजिली कम्प्रिहेंसिबल थिबो जमती चूजिंग केमिस्ट्री है कि फिजिक्स है गोटे कारण फिजिक्स केमिस्ट्री ऑप्शनल से अप्लाइड क्वेश्चन आसो तेणु गोटे पोस्ट ग्रेजुएशन पिला भी फिजिक्स क्वेश्चन देखिले फिजिक्स कर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी से सिविल सर्विस फिजिक्स क्वेश्चन देखिले टिके डर लगे तेणु से आम एमती गोटे सब्जेक्ट जो जेनरालाइज सोशियोलोजी कहीं कहे सोसाइटी स्ट्रक्चर आम डे टू डे कथा तेणु किसी जिनस मन रही आम लिखिपर सेमती पब्लिक एड है पीएसआईआर है जियोग्राफी है एगुरा सब होम साइंस है एगुरा सब माने जनरल अंडरस्टैंडिंग भितर आसे तेणु आम से कैप्चर कर नौ से बहुत पिला यही सब ऑप्शनल गुड़िक चूज कर 4-5-6टा ऑप्शनल ही 90% कैंडिडेट 90% एभव कैंडिडेट मानकर थाए बेसिकली लीडिंग ऑप्शनल सेटा तो डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट हुए बट फिर भी लेस माने इजिली कम्प्रिहेंसिबल सब्जेक्ट आम नौ एवं जोटा आमर कम्प्रिहेंस माने जनरल अंडरस्टैंडिंग रे आसी परिबो बुझी परिबो आमे टिके गाइडेंस पाइले एवं गोटे लेस थियोरेटिकल थिबो बेसी एक्सपेरिमेंटल नथिबो बेसी थ्योरी नथिबो अल्प थ्योरी थिबो से सब हिसाब रे आमे ए ऑप्शनल गुरा नौ तेणु ए जो जिनसटा होची जे बैकग्राउंड जो प्रश्नटा आम मन रे आसे बैकग्राउंड सेमती किछि न थाए बैकग्राउंड इज ए मिसनोमर is non-existent at all because you cannot have even if you have background you it's not sure कि you will succeed बहुत पिला जो माने political science रे post graduation करते are they succeeding all who are appearing I have seen people having background but fails and even not able to secure the 200 out of 500 marks तेणु सेमती बैकग्राउंड ये किसी न था कारण बैकग्राउंड इज नॉन एक्जिस्टेंट एट ऑल कारण एग्जाम पर्सपेक्टिवटा हूँ डिफरेंट राइटिंग पर्सपेक्टिव हो कम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल पर्सपेक्टिव दरकार ये करेन्ट रेलिवेंस एवं यूटिलिटी उपर फोकस हुए तेणु एते ये न था जमती आम बैकग्राउंड कथा कथा ठीक अच्छे यहाँ गोटे बहुत बड़ फैक्टर कि बैकग्राउंड इज नॉन एक्जिस्टेंट से विषय किसी ओरिड हबार ना नॉन बैकग्राउंड पिला ही बहुत भल करती बीटेक पिला साइंस पिला से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एक्सीलेंस अचीवमेंट कर बुझीगले से आराम से हो जाए ठीक अच्छे देन आई विल टेल यू व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट लेट मी से व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर ए वेरी in an advantageous position than other in comparison to other optionals. That is a matter to say. Because public administration जोटा हमें कहूँ ना ये तो माने at the time of preparation it is helpful. Even after you get the job it is helpful. जब तुम्हें public administration student है तो you will feel comfortable on the job. Because you will have greater understanding about the administrative structure, administrative hierarchy, administrative things, everything in detail. You will not have any confusion at all. You will not need any extra guidance on that. You will be very comfortable as an officer because you will have knowledge base. You will have a base knowledge base रही थी वो तो तुमको extra effort नहीं कि बुझे पड़ेगा सी गोटे problem. On the job आउ इटा both on the job माने helpful हुए एवं प्रिपेरेशन समय भी हेल्पफुल हुए एंड आर ओवरलैपिंग नेचर टा पाखापाखि 70 to 80%. 70 to 80% ओवरलैपिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 जोटा अच्छी एसए पेपर इटा तो पूरा कंप्लीटली ओवरलैपिंग अछि पेपर 1 एसए कारण सब एसए गुरा कोन थिंकिंग थॉट प्रोसेस ऊपर आसुची
प्रोभर्ब उपरे थॉट्स उपरे आसी बेसी ए वर्षर तो ओपीएससी से देखियो सब थॉट प्रोसेस सब रेलिवेंट करेंट रेलिवेंट सोचे जंती विजिबिलिटी इज कौन सेटा गोटे थिला visibility is often is taken as value. Visibility is taken as value, mistaken as value. एटा भी तो हमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट कारण विजिबिलिटी सोशल मीडिया तार बैड इंपैक्ट एगुरा भी हमें गवर्नेंस उपरे ये उपरे एटा भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करिवो सब सब एसे प्राय ऑलमोस्ट ऑल एसे 6टा एसे रु देखिबो 3-4टा एसे कोनोसी ना कोनोसी बातरे इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सोशल जस्टिस ए सब उपरे एंड व्हिच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये गोटे दिन पेपर 2 जोटा अच्छी पेपर 2 जोटा अच्छी हमर GS1 से डिजास्टर मैनेजमेंट है बहुत सारा अच्छी बहुत सारा डिजास्टर मैनेजमेंट है एगुरा सब हेल्पफुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे पूरा सिलेबस रे अच्छी तो इन डेप्थ पूरा एनालिसिस डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मिटिगेशन ए 20-30 मार्क ये गोटे प्रकार ओवरलैपिंग अच्छी आउरी अनेक जिनस भी ता भीतर अच्छी जोटा पेपर 1 रे ता सहित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड अच्छी पेपर 3 जोटा हमें कहूचे GS2 एटा पाखापाखि यू कैन से 80 to 90% ओवरलैप कर GS2 टा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेपर 2 मु कहबी ऑलमोस्ट सेम गोटे पेपर तुम सेपटे जहाँ पढ़ो एटी से पढ़ो गवर्नेंस रिलेटेड जोटा कि तुमको बहुत हेल्पफुल हम रिविजन पई एवं विभिन्न ताको आउरी एक्सेल करिया पई आउरी मार्जित करिया पई आउरी शार्पेन करिया पई यू विल गेट एम्पल टाइम जोटा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे सबुठारु बड़ खासियत बहुत बड़ बेनिफिट सेटा एटा इनफैक्ट भी काम करे एटा इनफैक्ट भी काम करे कारण एटा अपन मन जो देखिबे जेतेबेले जदी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नियंती देखिबे कि एटा केते दूर सहायता होउची एवं पेपर 4 जोटा अछि पेपर 4 होउची कोन GS3 जोटा एथिरे भी जो इंटरनल सिक्योरिटी प्लानिंग इंटरनल सिक्योरिटी है प्लानिंग है बहुत सारा जिनस ओवरलैप कर पेपर 3 ये भी 20-30% ओवरलैप एंड पेपर 5 जोटा एथिक्स पेपर माने GS4 एथिक्स इंटीग्रिटी एटा पाखापाखि एबव 50% ओवरलैप एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एडमिनिस्ट्रेशन रे केमती थॉट रो रैशनैलिटी पब्लिक इंटरेस्ट वैल्यूज सब जिनस आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ू and it has multiple overlap with the subject. That is most important thing to know. Then see that a paper has multiple paper overlapping. Every paper, it is omnipresent. Cross-sectional importance रही omnipresent ये पेपर 1 रू पेपर 5 जाए ये कोड ना कोडी प्रेजेंट अच्छी कोडी 70-80% कंट्रीब्यूट कला बेले कोडी 30% कंट्रीब्यूट करुची तो show me any other optional that has such a high rate of overlapping. You can examine because all of you are educated, all of you are highly matured persons, those who are appearing for civil service examination. I'm not telling you or not misleading you. It's not a matter of misleading. All of you have your own thought, ideas. You can judge it also. The only optional which has a higher rate of overlapping is of public administration. Then if you ask me, then it will be PSIR, then sociology. It's my opinion, and I think it is correct also. I depend on your opinion also. It's not that it is imposing one. I'm not imposing my decision, my things, and who will accept it? आज के दुनिया में आजकल दुनिया रे की क्या कथा मानुची
एवं किए क्या कथा भी माने एमती फोर्सिबली मानिब लोक रैशनल हेलेनी you are all rational human beings you have your own decision but think again before choosing the optional it will work it will definitely work because of high rate of overlapping जदि गोटे थोड़ा धरी नि जाऊ बहुत सारा कह जाए कि theoretical अच्छी टिके बुझिबा ठीक थर्ड पार्ट टा 4-5टा चैप्टर अच्छी जोटा कि टिके बारंबार बुझिबा दरकार हम जंती धर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज है एवं जो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे लैक सर्टन बिट लिटिल बिट ऑफ गोटे ब्रोकन सीक्वेंस तेणु से धरवा हुए बट से 4-5टा छाड़ पेपर 2-3टा पेपर जदि आम टे आउ थे बारंबार देखा हो जाए बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर इज अंडर आवर कैप्चर कारण से तो आम जमी जीएस 2 रे पढ़ा ना जीएस को तो भूल जीएस को तो जीएस पेपर को तो ओवरलुक करहबन ये सीना ऑप्शनल अच्छी बोली हाँ ये पेपरटा एमती सेमती तेणु जदि गोटे ऑप्शनल जीएस रो 70-80% एरिया को कैप्चर कर नौची ताले ताटू बेटर ऑप्शनल किसी ना ठीक अच्छे दिस इज व्हाई वी हैव टू चूज सो जो माने कौन ना दैट इज यू कैन से कि कौन हायर rate of overlapping इटा गोटे बड़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हायर रेट ऑफ ओवरलैपिंग देन यू कैन से कि आ गोटे रीजन कौन व्हाई who can take माने advantages का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो देखिबा हमें एडवांटेजेस का सपोज यू आर नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग डायग्राम्स you are not very good at drawing experiments or जो like in scientific picture, scientific diagrams, की experimental things. You are not good at drawing all these things. Jodi you are not good at that, then public administration is preferred. If you are not good at drawing diagrams, pictures, then public administration is suitable exam optional for you. Not good at drawing diagrams, pictures, fast ड्राइंग आसुनी कि मत ड्राइंग भल होनी मु पिक्चराइज करि पारनी सेल रो डायग्राम करि पारनी जियोलॉजी ऑप्शनल नहीं छी प्लांट डायग्राम करि पारनी प्रेजेंट करि पारनी जियोग्राफी नहीं छी पेंक आउ डाविस रो इरोजन साइकिल ऑफ इरोजन रो येटा करि पारनी ताले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट एग्जाम इटा गोटे मेजर्स देन नंबर 2 इज नॉट एबल टू not a habit I don't have a habit not a habit to remember anything but to memorize you can write that no memorization. Suppose you do not like memorizing things. बहुत पिला थांती बहुत पिला कहीं मैक्सिमम पिला थांती जो माने कौन मेमोराइज करि परंती एते घोसी की मन रखि परंती एमती तो न थाए कारण ह्यूमन तो मेमोरी न थाए हमर बट फिर भी बहुत पिला अछंती किछि घोसी दियंती बहुत सारा जिंस एपट सेपट करी की घोसी की लेखंती बट मोस्ट ऑफ अस आर अनएबल टू मेमोराइज एनीथिंग ताले हमें लेखु केमती एते जिंस अंडरस्टैंडिंग तेणु जदि तुम्हें मेमोराइजेशन को भल पाओनी पढ़िया को भल पाओ यू डोंट लाइक मेमोराइजेशन
but reading and understanding, then public administration is very much helpful. Then public administration is very much helpful. ओके सेटा गोटे मेजर जिनस कारण ड्राइंग डायग्राम्स पिक्चर्स ए बेसी किसी दरकार नहीं जहाँ भी दरकार से तुम्हें रफली भी कले चलो जमती धर आम स्पान ऑफ कंट्रोल लिखुचे स्पान ऑफ कंट्रोल गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल स्पान ऑफ कंट्रोल दैट हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स शुड बी सुपरवाइज्ड बाय ए अथॉरिटी बाय एन अथॉरिटी स्पान ऑफ कंट्रोल धर आम नैरो स्पान करुचे नैरो स्पान हेले आम दीटा धर तीनटा अथॉरिटी को आम धर ये करें तीनटा अथॉरिटी ताले तीनटा एमती भी करें नैरो स्पान वाइडर स्पान हेले धर वाइडर स्पान आम कहे वाइडर स्पान हेले आम 5टा 6टा दे पार धर एठी देले तो आम रफ डायग्राम करी भी प्रेजेंट करें एटा वाइडर स्पान एटा वाइडर स्पान ऑफ कंट्रोल एटा नैरो स्पान ऑफ कंट्रोल बस आम गोटे रफ डायग्राम करके दे पारे नॉट ब्यूटीफुली डिजाइंड और वेल ड्रॉन सेमती दरकार नहीं किसी ओके एटा गोटे बड़ जिनस एंड अनदर रिक्वायरमेंट इज इफ यू have interest in or you find a polity Indian polity and governance very interesting जदि तुम्हें इंडियन पॉलिटी आउ गवर्नेंस पढ़ले तुमको भल लगुच इंटरेस्टिंग मजा लगुच तुम्हें एंजॉय करुच रीडिंग इफ यू एंजॉय रीडिंग इंडियन पॉलिटी if you enjoy reading the political structure the president the vice president how they are they elected what is election how prime minister is appointed and why he is appointed and who is he responsible to and what is council of minister what is controller auditor general why supreme court gives a final decision what is constitution what is written what is unwritten constitution what is evolved constitution what is enacted constitution all these things you take interest in what Trump is doing now you take interest in international affairs you take interest in the global orders you take interest in international political developments then public administration is the best option for you okay and you have the capacity for general comprehension एक बात समझ में capacity for general comprehension I repeat general comprehension then public administration is a best option it's a good option okay so these are the things you can always take into consideration while choosing an option I will not tell you more okay but any doubt you can talk to us directly to clear your doubts okay so you can get our number through the sales team or you can get my number I will tell you that things is necessary okay so that is comprehension darkar these are the things you are necessary for this then let's understand the optional briefly okay what is public administration optional I will show you the syllabus briefly also what is public administration optional but what is public administration indeed what is public administration ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे ये पब्लिक वार्ड रो माने होची गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट कौन नहीं कि एटा बुझे दरकार गवर्नमेंट आसिला केमती सिस्टम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट and it is government administration अर्थात in the way the government runs why this system evolved okay so first देखो first धर हमरो
मॉडर्न स्टेट आसला स्टेट स्टेट माने राष्ट्र स्टेट माने एटी राज्य नु राष्ट्र एवं ये जो राष्ट्र गठन है मॉडर्न राष्ट्र जोटा कि 19 शताब्दी शेष पादरे 19th सेंचुरी रो लास्ट पार्ट रे मॉडर्न स्टेट इवॉल्व हैला फ्रांस परिका एमन सब गोटे डिफाइंड टेरिटोरी रही गोटे राज्य गठन गोटे राष्ट्र गठन है एवं जो स्टेट कहूचे स्टेट रो चारिटा एलिमेंट रहिला गोटे है टेरिटोरी आ गोटे है सिटीजन्स आ गोटे है सॉवरेनिटी आ गोटे है गवर्नमेंट ये चारिटा को लेकिन राष्ट्र गठन टेरिटोरी रहा अर्थात जमती धर आम भारत कहूचे भारत गोटे डिफाइंड टेरिटोरी रहा गोटे पॉलिटिकल मैप रहा तार कौटू कौ जाए इंडिया रहा कौटू कौ जाए इंडिया कौटू कौटू कौ जाए तो यहाँ रहा गोटे तार पार्टा एवं तापर तार सिटीजन्स रहिले पीपुल रहिले वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी रहा अर्थात तार पॉलिटिकल बाउंड्री रहा माने इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री स्टेट कैन नॉट बी डिपेंडेंट स्टेटा इंडिपेंडेंट रही अर्थात तार निजस्व डिसीजन निजे नब से छोट हो बड़ हो स्मॉलेस्ट सिटी हो लार्जेस्ट कंट्री हो स्मॉलेस्ट कंट्री जितेबाला गोटे स्टेट निजर अखंड सार्वभौमत्व रज निष्पत्ति निजे नब एक्सटर्नाल डोमेस्टिक डिसीजन से निजे नब से आम सॉवरेन कहूचे इंडिया बिकेम ए सॉवरेन कंट्री on 15th August 1947 that you better understand then what is the meaning of sovereignty independence and the most important element of state is government why it is important why government is important element because the state is run by government it is jette element ame dekhuche prakuta element ki government state धर ame कहूचे state should not do injustice तमाने स्टेट रो किछि गोटे कोन अछि गोटे लोक सी ना स्टेट गोटे पर्सन स्टेट रो एजेंट हैला गवर्नमेंट गवर्नमेंट जहाँ करिवो सेटा हमें स्टेट को कहूछ स्टेट रो ना दोछ धरो राजतंत्र हैला तमाने स्टेट इज मोनार्किकल तमाने सिटी मोनार्किकल गवर्नमेंट अर्थात राजशासन धरो हमें कहूचे स्टेट इज डेमोक्रेटिक तमाने सिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल आज वी हैव इन इंडिया इन अमेरिका in United Kingdom, in Australia, in France, we have an elected government. So government is elected. I mean, government is the major agent of the state because it runs the state. Government कौन करची runs the state. State को move करोची runs the state. So the nature of the state, but the success or the failure of the state as a political community it depends entirely on the nature of the government. जमती आम ईरान कथा देखुचे डेस्पोटिक गवर्नमेंट सिविल वार हो सब गंडगोल हो जोटी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी ब्रिटिश समय आम स्टेट नथिले कारण आम डिपेंडेंट कॉलोनी थिले तेणु जोटी डेमोक्रेसी अच्छी से भल हो जमती डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड टू बी द लास्ट प्रेफर्ड गवर्नमेंट आउ तार फॉर्म पर किसी ना जदिव डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल गुड ऑल वेल ऑल इज नॉट वेल विथ डेमोक्रेसी केत जन भी डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते बट इट इज द बेस्ट एमंग द वर्स्ट तेणु डेमोक्रेसी रे जो गवर्नमेंट आसला गवर्नमेंट स्टेट को रन करुच्च स्टेट रो मेसिनरी सी रन करुच्च एवं सी ही मुख्य कार्पेटदार मुख्य रोल प्लेयर होची गवर्नमेंट एवं से गवर्नमेंट को आमे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट गवर्नमेंट जो वे रन होची इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सेट अप ए गवर्नमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन ए गवर्नमेंट तैयारी हेबाटा तो किछ मुश्किल नो फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री गवर्नमेंट इज सेट अप आफ्टर द इलेक्शन इज कंप्लीट the government the ruling party the party which commands majority in the Lok Sabha makes a written request to the president and the president accepts the request of the leader of the ruling party then president invites them to form the government and then the government is formed all of a sudden within 2-3 days. So formation of government is not a top tax. Which is a top tax? Running the government.
And do you know who runs the government? In fact, the administrators, the civil servants, the bureaucrats run the government. ତେଣୁ जो गवर्नमेंट शब्दटा आम कहली गवर्नमेंट दी भार विभक्त होगा गोटे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जोटा को आम गवर्नमेंट कहचे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ गोटे है तुम लेट मी ब्रॉडली एनालाइज करवा आम ताको ब्रॉडली एनालाइज कर गवर्नमेंट जो कथाटा कहला गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट जो जिनसटा आसिला गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट तीन टा ब्रांच जोटा आम जानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी जुडिशियरी ये तीन जन रहिले गवर्नमेंट गोटे मुख्य कार्पेट द डिविजन दैट इज डिविजन बा सेपरेशन ऑफ पावर कहगला सेपरेशन ऑफ पावर रहा तीन जन को डिवाइड कला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रे पावर सेपरेट हो गला लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग जुडिशियरी सुपरविजन कला कस्टोडियन रोल प्ले कला ये परिचालन कला प्रकृत में गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन हो किए ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर लॉ मेक कला जुडिशियरी डिसाइड कला बा गोटे डिसीजन मेक अथॉरिटी बा इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ensures that legislature and executive works within the constitutionally prescribed format by any legal and constitutional way man function करुचंदी नहले से तांको वार्निंग दबो बा कोनोसी जजमेंट दबो सो इनजस्टिस हेले कोनोसी कॉन्फ्लिक्ट हेले से रिजॉल्व करिवो तो से वॉचडॉग ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम कस्टोडियन ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम जुडिशियरी बट रियल गवर्नमेंट लाइज इन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव होची गवर्नमेंट जोटा को आम गवर्नमेंट कहचे इन द नैरोर सेंस एंड एग्जीक्यूटिव टा दी भाग रहा गोटे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ गोटे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जोटा आम सिविल सर्वेंट कहचे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जोटा आम सिविल सर्विस बा ब्यूरोक्रेसी आम कहि परियो सिविल सर्विसेस बा ब्यूरोक्रेसी बर्तमान आम टी आसीगले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरीज आउट द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और पॉलिसीज डिक्लेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर द verdicts मेड बाय द एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी जो verdict देव से अनुसार से काम करेंगे लेजिस्लेचर जो लॉ पास कर जो अमेंडमेंट कर अनुसार से माने काम करेंगे एवं एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसी डिक्लेयर करिवो सेटा भी से इंप्लीमेंट करे तमरे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल सर्विस इज कनेक्टेड टू ईच वन तमने एडमिनिस्ट्रेशन बा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज द हार्ट इट इज द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट रन्स द गवर्नमेंट not the political executive but the administration sethipai imagine how important public administration in our society in every society not our society in every society public administration is an integral part of governance the stronger the better the smarter the administration is the smarter the better the governance is प्रशासनिक अधिकारी मैंने जिते ज्ञानी हेबे जिते रिस्पॉन्सिव हेबे जिते नॉलेजेबल हेबे जिते अकाउंटेबल हेबे सेते प्रशासन भल रही आज भारत वर्ष रे जहाँ भी सक्सेस कि जहाँ भी फेल्योर रही सरकार को आम दोष दो किंतु एक्चुअली इन प्रैक्टिस every at the root of success every success and failure lies the success and failure of the administration policies political executive are not concerned they are least concerned se mane cream khai dei basi jibe least concerned se mane policy तैयारी करिवे policy को approve करिवे किंतु प्रकृत real practice सेति में कुआ जे it is easy to frame policies but it is tough to
implement policies. बचने का दरिद्रता अच्छे मिठा मोटा कथा आम कहीदबा साधु हवा भल सत कहवा भल कार क्षति न करवा भल संवेदनशीलता रखा भल दया भाव देखा भल किंतु प्रैक्टिकल लाइफ रे आम एगुड़ा जो करुचे से कला करुवा लोक ही जानी केते कष्ट हुए केते कष्ट हुए सब जिनस करने तेणु इम्प्लीमेंटेशन सब बड़े इश्यू थाए आम भैल्यूज पढ़ुचे मोरालिटी पढ़ुचे नैतिकता पढ़ुचे सब पढ़ुचे बुझुचे रैशनल बीइंग पर आम सब बुझीपारे किंतु ताकू जेतेबेले दैनंदिन जीवन रे इम्प्लीमेंट करुचे सीटा कोउट ना कोउटी आम गोटे बहुत बड़ हेडाक हो रोचे कष्ट हो जड़े जी सब सत कहूँ जड़े सत कहूँ सी ताकू बहुत कष्ट हो कि केतेबेले सी जदि गोटे सत कहीकि कार क्षति करदेला ताकू दुख हो तेणु इट इज इजी टू हैव वैल्यूज टू अंडरस्टैंड वैल्यूज बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वैल्यूज ये मुमकिन नहीं है तो से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो गोटे इम्पोर्टेंस इज कौन इज उबिक्वियस सबू गोटे साइड रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे साइड आज आम जोटी भी अच्छे आज जोटी भी अच्छे बा काली आम जोटी भी रहिबा दैट इज बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आज आम वेस्टर्न कंट्रीज को डेवलप्ड कहूचे इट इज बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आम आज आफ्रिकान कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड किछि पार्ट साउथ अमेरिकन आफ्रिकान बा एशियन मोस्ट माने बेसिकली जो साउथ एशियन इवन पार्ट ऑफ एरो सब मोस्ट एशियन कंट्रीज मैंने जो अंडर डेवलप्ड कहूचे इट इज बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द बेटर द एडमिनिस्ट्रेशन द बेटर द गवर्नेंस एंड द बेटर द लाइफ ऑफ द पीपल in western countries administration is quite responsive and proactive in comparison to the third world, is not it? Therefore we are underdeveloping, we are developing, India is developing because there have been multiple changes in the administrative structure. The second administrative commission appointed in 2005 focused on institutional reforms because there were institutional lacunae in our administrative structure. The second administrative reform commission addresses the institutional issues and the ultimate with an objective to promote citizen-centric administration in the country, which is taking place now. And in this regard, AI and internet have had greater relevance. We have digital relevance, digital governance. It is to ensure faster governance, responsive governance, and economy in governance, to avoid corruption, to avoid misappropriation, to avoid irresponsibleness. We are heading towards that. Today, good governance is the core word, and therefore we observe 25th December every year as the Good Governance Day, National Good Governance Day, and the central government or the that is what the DRPG, Department of Administrative Reform and Public Grievance, publishes State Good Governance Index every 2 years. That is the order of the day now, isn't it? So administration is the heart of governance. Therefore, it is very important. And administration is related to all branches. Administration is it is connected to, it is ubiquitous. It is ubiquitous. ये सर्वव्यापी है, सबआड़ अच्छी. It has role in policy making. It not only implements the policy, but today it is also playing a crucial role in policy making. Do you know why? Because politicians are laymen and women. ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାଜନେତା ସେମାନେ. They are concerned. They are related with people only. They look after the public view, public opinion. They work for that. But while making policy, while designing policy, they seek the involvement of the administrators.
तेणु एडमिनिस्ट्रेशन डू प्ले ए क्रिटिकल रोल इन पॉलिसी मेकिंग. दे आर नॉट कंप्लीटली अलाइन टू पॉलिसी मेकिंग. ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग इज द डोमेन ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर्स. इट इज नॉट द डोमेन ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर्स. Political masters have little idea about the nature, about the need, about the structure of the policy. The administrators with vast experience and knowledge contribute to robust policy making. The political masters just put the consent on the dotted line. Every policy, talk about national health policy, talk about national agriculture policy, talk about national employment policy, talk about national women policy, talk about national mineral policy, whatever. The footprint of administration is indelible. अलिभा पदचिह्न रही प्रशासनिक अधिकारी मानकर पदचिह्न रहे से पॉलिसी तांकर स्टाम्प रहे से केवल से डिजाइन करती से कंट्रीब्यूट करती से ड्राफ्टिंग करती. तेणु दे प्ले क्रिटिकल रोल इन पॉलिसी मेकिंग, इवन लॉ मेकिंग ऑल्सो, एवरीवेयर. So therefore administration plays a very significant role. Okay, that is all about your administration. So public administration को सेतिपई administration by government in action को आजे. So their nature, their performance, their success is the success of the governance, their failure is the failure of the governance. So therefore it is said that they are government in action. If they falter, if they stumble, then governance stumbles, governance suffers. If they work steadily, move steadily, then governance moves steadily, progress moves steadily. And we have a progressive, prosperous, democratic, progressive, prosperous society. Prosperous, progressive, democratic society as Nehru envisioned. So therefore, administration is that. And let's look at some viewpoints of this. The great thinker Woodrow Wilson says, what says he about public administration? He says that it is getting harder to run a constitution than to frame one. Woodrow Wilson is considered to be the father of public administration. He conceptualized it as a special study in 1887. 1887 रे से politics administration dichotomy ऊपर कथा हितले. Politics is policy making and administration is running that, implementing those policies. So she कहिथिले जे it is getting harder to run a constitution than to frame one. तमने public administration is much more important than political executives. It is easy to make policies. It is easy to make rules and regulations. It is easy to provide solutions. But it is not easy to put the decision into practice. As I told you, in our day-to-day life, in our personal life, you can realize better. Ki understanding values is not difficult, but putting them into our practice is very difficult. Suppose you understand honesty and integrity, but as an administrator, as a public servant, or as an employee in anywhere, if you are bribed, if you get a chance to earn some extra money, out of the pocket money, ताले सेठी तुम्हें लोभायित हो. यदि कोटी तुम्हें दरमा पाउछ कि को काम करदेले कि को इश्यू करदेले तुमको लक्ष मिलला 2 लाख मिलिबो, तो तुम्हें सेठी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ऊपर गोटे क्वेश्चन मार्क लगे दोछ, चिंता करूछ. शुड आई बी ऑनेस्ट? एंड से तो सब सपोर्टिव कथा तो मन को आसी कहीं मु कहीं खाली 1 लाख टका नौ केटे लोक नौ 1000 कोटी खाई जाउछंती. फडर स्कैम रे एते खाई गले, राफेल डील रे एते करप्शन हला, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम रे एते. सेते तुमर कथा को आसला कहीं ना तुम्हें तुम वैल्यू को कंप्रोमाइज करियो चाहछ. सिचुएशन कंपेल कलानी, तुम्हें कंपेल्ड हे गेल. कोड कहीं कंपेल हैला ना तुमर लॉस्ट फॉर मनी. अभाव समाज रे, अभाव संसार, जिते रोजगार कले भी अभाव रही. वांट्स आर अनलिमिटेड, आदम स्मिथ कहला. अभाव संसार रे, अभावी संसार रे
कौटी जदि टिके झलक मिलिला ताले बहु बड़ महामहा रथी भी टली जाइछन्ति किंतु अछन्ति लोक जो मान तांकर इंटीग्रिटी को बजाय रखछन्ति जो मान तांकर ऑनेस्टी को बजाय रखछन्ति सिंपल लिविंग करछन्ति हाई थिंकिंग रखछन्ति निजर सैलरी भितर पछन्ति बट से जो ब्रीड टा बहुत कम रही होछि तेनु सेटा होछि कि इट इज very easy to have values. It is not easy to implement those values, and it is easy to have a constitution, but it is very hard to run the constitution. Okay, let us see another quotation of very good quotation. I find it very David H. Rosenblum, a prominent administrative thinker. David H. Rosenblum, David H. Rosenblum. He says it's a very extensive definition of public administration. Public administration is the use of managerial, political, legal theories and processes to fulfill legislative, executive and judicial government mandates for the provision of regulatory and service functions for the society as a whole or for some segments of it. It's a very good definition. It is the managerial, political and legal theory sabu jinsa and progresses to fulfill legislative, executive and judicial government mandates, nirdesh, orders for the provision of regulation, regulatory and service functions for the society. Regulate भी करूची telecom regulatory authority, SEBI କରୁଛି, RBI କରୁଛି. That is also a part of administration. That is a broader sense. Public administration is a broader sense. So that is a wider definition. It's not simply implementing the policies, but contributing to those policies, contributing to the policy making also. We'll discuss that in our in our chapters. New public service, new policy making, केमती participate करची. Politics administration dichotomy is a myth in the present context. It does not exist. It exists a little. So that we will discuss in our chapter analysis जो आरंभ करिवा. ठीक अछि. So this is all about. बाकी जो देखियो देखो public administration रो जदि तुमे basically जदि तुमे syllabus देखियो syllabus. First of all तो मन रखो कि syllabus बहुत कम. Look at the syllabus. It's comprises just it is paper 2 is paper 1 is complete, 1 pages, 1 complete page and 2 is complete. Bas. This is the syllabus first. This is the syllabus first. And with regards to I will take another class in the orientation also. When you join the batch, I will have a deep analysis on syllabus and the keywords. But let's understand the basic jinsa. First you are given basic concepts. Basic concepts माने जो स्कोप इवोल्यूशन गोटे सब्जेक्ट हिसाब केमती आसला तार इंपोर्टेंस कौन एवं केमिति गोटे क्रमानुगतिकता रही केमती गोटे जो इवोल्यूशन क्रम विकास होती पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज आम डिजिटल गवर्नेंस एज रे पहुंचे हाउ दिस हैज रिवॉल्व्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड like from the days of Woodrow Wilson time 1887 to still 2026. Administration has gone through many ups and downs, many substantial changes, not only in structure but also in approach. So in that chapter we learn various things and ultimately will result into good governance. Okay, then we'll have some theories and principles, very minimum. Just have a general comprehension about various theories, various principles. जोटा आम जानीचे सब आम धर तुम गोटे ऑफिस रे काम करुच तुम गोटे अथॉरिटी अच्छी ऊपर कि नहीं तो सेटा यूनिट ऑफ कमांड एवं तुम्हें तुमरी भली 4-5 जन अच्छा तुम जमी मैनेजर है तले असिस्टेंट मैनेजर 4 जन रहिले तो सेटा स्पान ऑफ कंट्रोल ता माने से मैनेजर 4 जन कंट्रोल करुच दैट इज स्पान ऑफ कंट्रोल. Isn't it? Hierarchy अच्छी जेमती hierarchy रहिला कलेक्टर assistant collector deputy collector जेमती रहिला सेटा hierarchy सब ऑफिस रे अछि. So public administration is such a paper that we read it every day explicitly and implicitly. हम पढ़ते हैं उसको
प्राइवेट रे काम करो कि गवर्नमेंट रे काम करो, सब जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही तुम फेस कर, थ्योरीज को फेस कर, प्रिंसिपल को फेस कर, एवरीवेयर यू आर कमिंग अक्रॉस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो थ्योरीज गुरा देखा, क्लासिकल थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी, सब डिफरेंट थ्योरी, सिस्टम अप्रोच गुरा सब रही, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज. तापरे स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट जंती मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री पर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पर डिवीजन, डिवीजन पर सेक्शन, ए जो टाइप रो स्ट्रक्चर गुरा दैट वी एक्सपीरियंस विद एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो रही, लीडरशिप, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज एगुरा गोटे रही. तापरे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, विभिन्न प्रकार नियंत्रण, एरा सब पॉलिटीर भाइटाल पार्ट गुरा सब रिपीट हम सब सेंस. हाँ, तापर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन जो ट्रिब्यूनल रही, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रोसेस, टेक्निक्स, 1M स्टडी, एगुरा सब बहुत बहुत माने कम्प्रिहेंसिबल टॉपिकटा, सब्जेक्टटा. एटा तुम थरे पढ़िले एटा तुम आराम से बुझी जाई कि 2-4 पद लिखि पारियो, सेटा किसी प्रॉब्लम होबनी. तेणु तापरे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर्स, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर, मॉडल्स, ब्यूरोक्रेटिक एंड इकोलॉजिकल मॉडल जोटा हमर फ्रेडरिक रिक्स रो नेचर एंड स्कोप, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, एगुरा सब कंपैरेटिव येला सरला. एटा तापरे पब्लिक पॉलिसी जोटा तुम प्रिलिमिनरी रे भी अच्छी एवं मेन्स रे भी अच्छी, पब्लिक पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, सब्सटेंशियल पॉलिसी एगुरा सब रही, सेगुरा भी तुम देखिपार, एगुरा भी गोटे बहुत भाइटाल पार्ट प्ले करुच्छे. पब्लिक पॉलिसीटा प्रिलिमिनरी भी अप्रोच अच्छी. तेणु से कथा मूल जो तुम ऑप्शनल पढ़ुच, तुम तुम प्रिलिम प्रिपेयर हो प्लस तुम कौन मेन्स भी प्रिपेयर हो. तो गोटे जिनस गोटे टेकार ये 2टा शिकार नुह, ये गोटे टेकार 5टा शिकार हो. 1 stone kills 5 birds. तमाने 1 stone kills 5 birds फॉर्मूला रे बापा. 1 stone kills 5 birds. ये ठीक ना भूल सेटा तुम्हें कह मो मत. ठीक अच्छे. पब्लिक पॉलिसी तापरे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छी, ऑब्जेक्टिव, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, पोजीशन क्लासिफिकेशंस, पे एंड सर्विस कंडीशंस, पूरा तुम GS3 पड़ जाऊँ. आज एथर ट्रेनिंग उपर क्वेश्चन आसला, जो GS2 रे तुम देखि ट्रेनिंग उपर क्वेश्चन आसला, तो GS2 रे. तापरे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एटा भी तुम इकोनॉमिक रे रहउची, बजट एरा सब इकोनॉमिक्स रे रहउची, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस, budgeting, accounts, audit, it is all are relevant in economics paper also, polity paper also. Okay, code of conduct, integrity, एगुरा सब ethics रे गोटे बड़ा जिनस. ethics एटा ethics paper रे, ethics integrity गोटे core paper एटा ethics रे नहीं कि much relevant रे बेटा, much relevant. तो एटा पब्लिक पॉलिसी टा बहुत सारा पार्ट रहला. ठीक अछि. एगुरा भी जोड़ा तुम देखुछ, एगुरा सब जोड़ा ओके एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, एगुरा सब कौन माने मेजर जिनस रोचे, ब्यूरोक्रेसी, डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, तापरे एटा होची पेपर 2. पेपर 2 रे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 2 इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एंशिएंट पीरियड, मेडिएवल, ब्रीफ एनालिसिस. गोटे एंशिएंट समय केमती थिला, कौटिल्यर अर्थशास्त्र समय स्टेट क्राफ्ट केमती एडमिनिस्ट्रेशन, मोगल एडमिनिस्ट्रेशन, सुल्तानी पीरियड रे गोटे ब्रीफ झलक गोटे दरकार. तापरे मॉडर्न पीरियड कॉलोनियल समय केमती एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कौन थिला एटा. तापरे एगुला तो सब पॉलिटी आसीला, प्रिएम्बल, साइलेंट फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एगुला सब रहला गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. नहीं ये तो सब आराम की बात है. तापरे असला कौन ना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यू कैन सी दैट वेरी कंफर्टेबल. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर, बट नॉट सब पॉलिटिकल पार्ट की नहीं. अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, एडवाइजरी बॉडीज, बहुत सारा एडवाइजरी बॉडीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बोर्ड्स एंड कमीशंस, फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एरा सब सेमती स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रहला, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटेरिएट, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, रेस्पेक्ट सब जीएस पेपर 2.
All India services, constitutional provision, role, function, central services, recruitment, training, promotion, UPSC, state PSC, control of public administration, parliament control, estimate committee, public account committee, जहाँ भी देइछि सब ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जितकी देइछि कीवर्ड अनुसार पढ़ा कीवर्ड अनुसार मु कवर करियो आ कि दरकार नहीं अधिक जितकी देइछि तारि ऊपर किछटा ब्रीफ नोट ओटा दरकार बस सेति पढ़िया दरकार पर्सन इज क्लियर दैट मोस्ट इंपोर्टेंट ओके तापरे जेटा रहला तुमरा ओके तापरे प्लानिंग कमिशन एटा तुमर इकोनॉमिक्स रो भी गोटे वाइटल पार्ट पेपर 3 रो फंक्शंस रोल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग प्रोसेस नेशनल प्लानिंग स्टेट प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एवं नीति आयोग भी एथरे रहइबो तापरे वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन मेशिनरी फॉर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एगुरा सब रहिला शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन सोशल जस्टिस पार्ट एटा सोशल जस्टिस सब जिनस ओके तापरे सेंट्रल स्टेट रिलेशन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर एंड एथिक्स करप्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लोकपाल लोकायुक्त डिजास्टर मैनेजमेंट criminalization of politics new economic policy undertakings information technology paper 4 गोटे एरिया रे केते जिंस कवर होची सेटा देखिबार अछि सेटा हला बड़ जिंस सेटा जदि हमें देखुचे ताले हम जानि पारुचे ओके सेटा गोटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रहउची सेटा गोटे बड़ पर्सपेक्टिव रहउची सो दिस इज द थिंग्स अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली नॉर्मली तो गोटे क्वेश्चन सब बळे आमे मन रे गोटे संदेह बा गोटे क्वेश्चन मार्क रहे मोर बैकग्राउंड कथा सब बळे आसे बट फॉरगेट अबाउट बैकग्राउंड whether you have background or you don't have background doesn't matter will not matter at all no issue whether you have a background or not you have to start afresh even you have done your ऐसे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ग्रेजुएशन सर्विस बहुत कम यूनिवर्सिटी दौरान बट इवन इफ यू हैव डन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल पेपर इवन इफ यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन एज पॉलिटिकल साइंस बट यू नीड टू स्टार्ट अफ्रेश इसको नई माने नुआ भाव आरंभ करियो तुम केते भी एक्सपर्ट हुआ पॉलिटिकल साइंस केते भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोर करता किंतु एठी तुमको डिफरेंट अप्रोच रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिकी तुम पैटर्न को फॉलो करियो पड़ो राइटिंग को से अनुसार तुमको रीशार्पेन करियो पड़ो not at all those who have background are in advantageous position not at all ये it's wrong to assume that those who have background will do far better than those who do not have background. No, not at all. It is seen that people having no background excels more than those who have background. It depends on your mental ability or your capacity to understand, to analyze the things and to grasp the thing. That depends. The entire exam process is as such a different process, a unique process. And the UPSC, OPSC questions are thought-provoking. They will use your theoretical knowledge in writing, but it's not exclusively essential for writing. Apart from theoretical knowledge, you need to have a practical analysis. You need to have a comparative mindset or a mindset to compare and to judge the relevance of the thing. You have to be a bridge between the theory and practice. You have to have a very working idea, working knowledge of the system, the developments, ongoing developments in the country. The measures are being taken by the government. You need to have attention of all these things. Your perception, your thinking process, your opinion will be reflected in your answer. And you will get good mark if your analysis, if your thinking matches the quality of a civil servant, match the requirement of a civil servant. You will get selected. Okay, so that is the things.
will be taking classes. We have already the batch is first batch start होउची तो जो माने भी those who are interested can do that. Okay, बाकी जो माने personal किसी guidance चाहूँ you can contact me on my number 9348798237 9348798237 ये जो नंबर टा अछि मोर 934487982237 एथरे मते डायरेक्ट कांटेक्ट कर परिबो दो माने किछि ऑफलाइन गाइडेंस की सेंति किछि पर्सनल गाइडेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रे आई कैन हेल्प यू विथ दैट रिगार्ड. ओके तेणु बाकी रहा जो परसेप्शन दरकार जो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग जो की वर्ड गुरा अपन देखुं ये की वर्ड गुरा ही आमको टिके 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 देखा पड़ो जोटा कि गोटे पेज 2 पेज 3 पेज गोटे नोट हो गले बस कीवर्ड से आम पढ़ीदे बस से अंडरस्टैंडिंग तापर करेन्ट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव रे करेन्ट पर्सपेक्टिव रे जो आइडिया गुरा रोचे ओके सेटा भी टिके रिलेट करिया पड़ो. तेणु ये जो ऑप्शनलटा रोचे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल एथिरे तुमर गोटे भाइटल जिनस आवश्यकता होची कोन ना अंडरस्टैंडिंग जो तुम पढ़ुच धर जो हाउ टू डील विथ दिस पेपर धर सपोज यू आर लर्निंग सपोज you are today you have covered but today you have covered that is your basic concepts धर बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़ीच कि धर तुम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ीच जोटा ही पढ़ धर तुम आज पढ़ीच इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन. ओके सो सेटा धर क्लास रे ताकू पढ़ाला एवं किसी नोट्स भी दिया हबो तुम क्लास रे नोट्स दिया जिवो. ओके किंतु तुमे जते बळे से चैप्टर टा कवर कलो इवोल्यूशन टा जो 5 to 6 to 7 स्टेजेस बा 9 स्टेजेस जा भी अछि अकॉर्डिंग टू ये देखिबो तो सेटा तुमे जते बळे ताकू बुझी गलो सेते बळे निज लैंग्वेज रे ताकू लेखिया को चेष्टा करो सेटा हला बड़ जिंस निज लैंग्वेज रे लेखिया को चेष्टा करी जोटा तुमको वेरी मच हेल्पफुल हम कि जदि तुम चैप्टर वाइज एमती करी करी गल ताल तुमको इजी हो जिवो जिंस कारण सब सब्जेक्ट भी जहाँ भी तुम जीएस पढ़ जहाँ पढ़ ये अप्रोचटा बहुत बढ़िया अप्रोच निजे लेख राइटिंग फ्रॉम द डे वन इज एसेंशियल नॉले को ऑप्शनल भी काम दबनी को ऑप्शनल काम दबनी माने एमती नहीं कि आमे वी शुड नॉट पुट द ब्लेम ऑन ऑप्शनल तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेल आ पाइलनी तुम कह सार आमको कहले मिसलीड कले आम नहीं गल ना सेटा भूल धारणा. ऑप्शनल इज नॉट फल्टी फल्टी हो आमर अप्रोच केमिति अप्रोच आम नवा दरकार यदि मु आज हायरार्की पढ़िली कि मु आज इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िली और सार मते 8टा स्टेज कहले डू आई remember those stages do I remember the thinkers associated with each stage do I remember the core ideas of each stage or if I don't remember exactly letter by word can I summarize them can I tell something about them if not then everything is not then सेटा केमते हम तेणु एठी putting the blame on other subjects choosing had I chosen other optional had I chosen this optional I would have बहुत पिला मु देखि इंडिसिशन रखती सब बेले एक थरे गोटे ऑप्शनल दियंती पुणी आउटे थरे आउटे ऑप्शनल दियंती पुणी आउटे थरे ऑप्शनल सेंती करनी सेंती हेले तुमर चांस कटि जीवो टाइम बहुत लागि जीवो टाइम टा बहुत बड़ा फैक्टर द सूनर द बेटर नहीं कि द सूनर the better otherwise it will be too late. तो सेति पई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो ऑप्शनल ए जो कथाटा अछि एटा बहुत बढ़िया डिसीजन तुम मन नैछ बा जो मन भी नब तो निश्चित भाव एटा बढ़िया डिसीजन कारण एटा तुमको हाईली हेल्पफुल हबो एवं जो माने प्रकृत सक्सेस टार्गेट करिछ सीरियस अछ से माने पई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे बहुत इजी बा बैलेंसिंग ऑप्शनल हिसाब रे काम करिवो एवं जोटा कि तुमको मल्टीपल टाइम स्पेंड करिके तुमको
मल्टीपल सब्जेक्ट को कैटर करिवो ई करिवो तेणु सेटा तुमको निश्चित भाव में हेल्पफुल हम बोली मु भावुची ठीक अच्छे ओके तो आज मु तुमको यहाँ गोटे इंट्रोडक्टरी क्लास रे जहाँ फील कली तुम सहित शेयर कली विल प्रोसीड विथ अदर्स चैप्टर वाइज फॉलो करी हम अप्रोचटा चैप्टर वाइज आम फॉलो करवा ठीक है चैप्टर वाइज देखा एवं सबू चैप्टर रे माने चैप्टर सरिले तार पीओआईक्यू एनालिसिस रहिबो किछिटा जहाँ तू पीओआईक्यू थिबो किछिटा एवं तुम्हें भी लेखिकी मते दे पारिबो ठीक अच्छे सेटा भी गोटे ये पारिबो एवं बेसी बुक्स रो किछि आवश्यक एथरे नाही गोटे दुटा बही जदि किनि पारिबो बुक्स रो भी किछि नाही क्लास नोट ऊपर फोकस करबा दरकार ताले तुम्हें कन्वीनियंट वे रे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर करि पारिबो राइट तो मु भावुची एठी हमें क्लास को रखिबा नेक्स्ट पुणी मु तुमको सिलेबस उपरे कीवर्ड उपरे आउ टिके इन डेप्थ एनालिसिस करैबी सिलेबस उपरे इन डेप्थ एनालिसिस करिबी एवं तुमको देखैबी कि प्रत्येक कीवर्ड रो जस्टिफिकेशन कोन एवं केमिति सेटा माने बुझिबा दरकार कोन कोन तार मेन टार्गेट कोन मेन माने इश्यू कोन एवं केमिति सेटा को जणे कैप्चर करी पारिबो ठीक अछि सो गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेटिंग फॉर यू ठीक है थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस यू ऑल